This is Alok. Namaskar. I'm 24/7 serving for Manovikas family with my sweet daughter and dedicated wife and one special national awardee. As a rehabilitation specialist for person with intellectual and developmental disability and the founder of Manovikas family, I love and celebrate diversity every moment in my life. Welcome to Mashwara 34.05 episode. 05 is our good practice episode, and Mashwara is a live consultation during Benjamin COVID-19 was swimming very outbreak. Seeks to improve quality care, inclusive education, and advocacy for persons with intellectual and developmental disabilities. Just I'm finding somewhere some sounds are coming, so let me. Okay, Mashwara has therefore announced to host the series of good practices from parents, siblings, professionals, schools, NGOs, hospitals, etc. on every Wednesday's live consultation. मशवरा कोविड-19 के दौरान लाइव परामर्श है जो बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए की देखभाल, समावेशी शिक्षा और मूलभूत अधिकारों के लिए हिमायत या वकालत के बारे में बातचीत करता है। मशवरा में अब प्रत्येक बुधवार की लाइव श्रृंखला में माता-पिता, भाई-बहन, पेशेवर, स्कूल, गैर सरकारी संगठन आदि के श्रेष्ठ या उत्तम कार्य को हम प्रस्तुत करेंगे और आज वही कड़ी है और इस कड़ी में टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड प्रैक्टिस फॉर अवेयरनेस टूल्स और जो YouTube है that is a great and good practice good tools for awareness. So today we'll discuss about the awareness through YouTube channels. The good practice series in Mashwara is started now after receiving good practice proposals from you all, and now we demonstrating the effectiveness of prevention, care, education, skill training, job placement, awareness, and other services. How some skills, some trainings are very much effective for the our society at large. आपकी ओर से अच्छे उत्तम कार्य की प्रस्तुति का प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद हम प्रारंभिक रोकथाम, देखभाल, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, नौकरी, प्लेसमेंट और अन्य सेवाओं की प्रभावशीलता के बारे में हम मशवरा करेंगे। I welcome all our guests and participants and audience. Today our series is on good practice for awareness on YouTube. हम हमारे सभी मेहमानों का, दर्शकों का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आपले स्वागत आहे, वेलकम। हमारी गुड प्रैक्टिस सीरीज में आज हम YouTube पर जागरूकता के लिए अच्छे जो एक टूल्स हैं, जो अच्छे प्रयास हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। The Mashwara live consultation is through Zoom and Facebook Live for persons with intellectual and developmental disabilities, their families, caregivers, professionals during this coronavirus outbreak. यह मशवरा परामर्श कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान Zoom पर और Facebook लाइव के माध्यम से बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए, उनके देखभाल करने वालों के लिए और पेशेवरों के लिए लाइव है। मशवरा की हर श्रृंखला आप सभी से है और आप सभी से मशवरा है, तो कृपया हमारे साथ मशवरा में जुड़े रहे। मैं पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं। एंड वी नो दैट द ऑनलाइन वीडियो especially on the YouTube can give at the opportunity to create awareness. It can help to tell the story that's been close to our heart and warmth and emotions. And awareness video can be the powerful tool in a lot of different situations. And it can be used to like drawing attention to key issues that matter to you and your organization. Inspire the people to act by spreading the message or talking a specific action. Educate the people, share a story for change, and many more things. You can make your issues you can publish through the YouTube channel. हम जानते हैं कि ऑनलाइन वीडियो, विशेष रूप से YouTube, जागरूकता फैलाने के का एक बहुत ही बड़ा अवसर है। उसमें जो है हम अपनी कहानी बना सकते हैं, हम अपनी कहानी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यह उस कहानी को बताने में भी मदद कर सकता है
जो उत्साह भावना के साथ हमारे दिल के करीब रहती है। आपके अंदर बहुत सारे उत्साह है, बहुत सारी भावना है, आप YouTube के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जागरूकता वीडियो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसी चीज के बारे में अगर लोगों का ध्यान आकर्षित करना हो तो उसके लिए हम जागरूकता वीडियो कर सकते हैं। पूरे संगठन के बारे में हम बता सकते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता सकते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों को आगे ले ला सकते हैं, लोगों तक संदेश हम फैला सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। विशिष्ट जो आपकी विशिष्ट कार्रवाई है उसके बारे में आप बातचीत कर सकते हैं और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, लोगों को जानकारी दे सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन संबंधी हो, चाहे वो थेरेपी संबंधी हो या किसी भी चीज की संबंधी हो, उसके बारे में आप लोगों को बता सकते हैं। बदलाव की कहानी भी आप साझा कर सकते हैं। अगर आपने कोई चेंज लाया है लाइफ में, कोई बदलाव लाया है किसी की जिंदगी में, तो वह भी कहानी आप YouTube के माध्यम से साझा कर सकते हैं। आई वंस अगेन वेलकम एंड अप्रिशिएट our special guest to join this Mashwara Live. This episode is bringing you a very important topic, and the topic is very important. It is the awareness through the YouTube model, YouTube channel. And I welcome our speakers. The first speaker is very close to my heart and he is very close to me. I have the good friendship with him. I'm very much inspired by him. And he is a Mr. Ashok Dubey ji. Sir, namaskar, आपका स्वागत है मशवरा में. He is a advocate and YouTuber, and he is the general counsel or executive council member of Pandit Deen Dayal Upadhyay National Institute for Physical Disability in New Delhi. He is member and advisory board of the CCPD, the Chief Commissioner of Person with Disability, New Delhi, and many more. इनके पास जो ताज है वो बहुत सारे ताज है। सर, आपका स्वागत है आज मशवरा में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी विनती को सुना और आप यहाँ पर आए। And we have the very young and talented person, the professional, Mr. Atishek Kumar. We welcome you, Mr. Atishek, and he is the founder and managing director of Holy Heart Special School and Help for Special. I have followed him very much in the YouTube. Whatever he is doing, I'm very much I appreciate your work, and we'll see that how you are doing it. And this session is presided by our JC Gupta sir. Sir, we welcome you all here, and we have a sign language interpretation by Mrs. Rakhi Ramola. We welcome you, Rakhi. And मैं पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ मशवरा लाइव में शामिल होने के लिए, और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः स्वागत करता हूँ हमारे एपिसोड में हमारे विशेष वक्ताओं का, मिस्टर अशोक दुबे जी का, मिस्टर अतीश कुमार का, मशवरा में राखी रमोला के द्वारा सांकेतिक भाषा में अनुवाद उपलब्ध है। जिन किसी को भी चाहिए सांकेतिक भाषा में अनुवाद, तो आप राखी रमोला के विंडो में देख सकते हैं। And I'll not take much time today, and I'll go directly to my very dear friend Ashok ji and advocate Ashok Dubey ji. He is BCom and LLB and a YouTuber as well, and also he's an advocate. He's a practicing lawyer in Ayodhya, and his voice is very much heard in everywhere, in every corner. And he's also a voice of person with disability. And he is a Akhil Bharatiya Advocacy Pramukh in Saksham organization. He is a Akhil Bharatiya Prachar Pramukh in Saksham organization. And you are inspiration for all, including non-disabled persons and everybody. And आपने बीकॉम की है, एलएलबी की पढ़ाई की है अशोक दुबे जी ने, और दिव्यांगजनों की जो आवाज है उसको समाज तक पहुंचाने का जो आप एक वकालत कर रहे हैं, जो हिमायत कर रहे हैं, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आप सक्षम के अखिल भारतीय अधिवक्ता प्रमुख हैं और आप संस्थान के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और मैं आपसे डायरेक्ट अब पूछना चाहूंगा कि प्लीज टेल अस when and how you become from YouTuber to from an advocate to YouTuber. सर, आप पहले तो अधिवक्ता थे और अब मैं देख रहा हूँ कि जो आपसे 1, 2 साल 3 साल मिलने के बाद मैं देख रहा हूँ कि आप तो बहुत अच्छे यूट्यूबर बन गए। सर, ये कहाँ से आपको प्रेरणा आई और कैसे आपने ये काम स्टार्ट किया? मिस्टर अशोक दुबे जी सर। श्रीमान डॉक्टर भुवन साहब, आपसे मित्रता तो पुरानी है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, और श्रीमान जेसी गुप्ता जी का भी और रितेश जी भाई साहब का भी। आप लोगों ने हमें अपने मंच पे अवसर दिया है अपनी बातों को साझा करने का। डेफिनेटली इट्स माय ग्रेट प्लेजर। सो फार क्वेश्चन इज कंसर्न्ड,
डेफिनेटली आपको याद होगा जब कोरोना 19 शुरू हुआ, कोविड-19 की बात आई, तो उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पीच था अवसर के रूप में उसको उपयोग करने का, और माननीय भैया जी जोशी जी का बौद्धिक मुझे सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ, और डॉक्टर सुकुमार जी जो अपने केंद्रीय संगठन मंत्री सक्षम के, उन्होंने भी ऐसा कुछ बताया कि हमें इस अवसर को कैसे उपयोग करना है। तो मुझे लगा कि जागरूकता एक ऐसा काम है जो राउंड द क्लॉक चलते ही रहना चाहिए, और बस चूंकि कोर्ट भी बंद थी, कहीं जाना नहीं था, घर में ही रहना था, लेकिन काम कोई नहीं रुकने थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो हम बैठकों में जाके करते हैं, जो हम कोर्ट में करते हैं, लोगों के बीच में मीटिंग्स करते हैं, तो हम YouTube के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इससे मेरा भी टाइम निकलेगा, हम अपनी जो एक्सपर्टाइज है सोसाइटी में दे पाएंगे और लोगों को एम्पावर कर पाएंगे, बिकॉज एम्पावरमेंट इज द बेसिस फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू गेट अ सक्सेस लाइफ। यही हुआ और हमने वही किया। मेरे जो अपने अनुभव थे, मेरी बिटिया है शुभ्रा द्विवेदी, उसने हमको कोऑपरेट किया, और अभी हम डेली एक वीडियो डाल रहे हैं। उसमें हमारा फोकस ऐसा नहीं सिर्फ डिसेबल पे रहता है, डिसेबल अपने जो दिव्यांग बंधु हैं उनको फोकस करते हुए जितनी लॉज हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं जीवन के, उनको हम इस YouTube में पिरो करके लोगों के सामने रखते हैं। और हमें खुशी है कि चाहे वो बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे असम हो, वहां तक के लोगों से जो सजेशंस आते हैं, जो क्वेश्चन की क्वेरीज होती हैं, उन पर भी वीडियोस बना के मैं देता रहता हूँ दिव्यांगता पे। मैं समझता हूँ शायद ये मेरी खुशी का अवसर है, और ये शायद मेरे जीवन की अच्छी सार्थकता है, समय की भी सार्थकता है कि हम इसका सदुपयोग कर पा रहे हैं। तो इसका सारा का सारा श्रेय जो हमारे मार्गदर्शक हैं, माननीय भैया जोशी, डॉक्टर सुकुमार जी, और जो प्यार बरसता है भाई अखिलेश जी हैं, उनका भी, आप सबका मार्गदर्शन, और डॉक्टर हेडगेवार जी की जो बात है, उनका जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए हम सभी समर्पित है। भारत माता परम वैभव को प्राप्त हो, इसलिए अहरनिश सेवा में है, निरंतर सेवा में लगे रहना है, उसी उद्देश्य के साथ YouTube शुरू किया। और एडवोकेट आज भी हूँ, रहूंगा, क्योंकि एडवोकेट्स एक्ट में और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया गाइडलाइन है उसमें प्रोहिबिट नहीं किया गया इस चीज को। चूंकि पेशा है, कोई भी पेशा होता है समाज की सेवा के लिए होता है, और इसीलिए मैं भी इसके माध्यम से समाज की सेवा कर रहा हूँ, निःशुल्क कर रहा हूँ, कहीं से कोई गेन नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें कहीं से कोई किसी लॉ का उल्लंघन नहीं है, नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लॉ while doing this. So I am continuing as advocate, and my and expertise being used for the purpose of society, for the empowerment person with disabilities, to empower them by via YouTube. Thank you, Dr. Alok ji. ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। वो तो मुझे पता है कि आप इतने काबिल हैं कि आप लॉ को वायलेट नहीं करेंगे, लेकिन लॉ जो आपने लोगों तक पहुंचाना शुरू किया है, कानून को जो लोगों तक समझाना शुरू किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपने जो कोविड को एक अपॉर्चुनिटी के तरह लिया, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने कोविड काल में ये बहुत अच्छी एक पहल की है। सो देन थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपसे पुनः बात करूंगा। मैं फिर अभी से अतिशेक जी से बात करना चाहता हूँ। द हेल्प फॉर स्पेशल इज एन ऑर्गेनाइजेशन रनिंग अ यूट्यूब पोर्टल टू हेल्प एंड क्रिएट अवेयरनेस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, including professionals working for them. The YouTube channel has more than 300 videos on the topic of fine motor skill to activity of daily living to speech therapy to other things and other special messages you can find out from the different doctors, different advocates, different professionals. He is talking to the professionals and putting onto the YouTube channel. And we have seen that about more than 16.4 thousand subscribers are on his YouTube channel. So we welcome you, Mr. Atishek. Health for Special एक YouTube पोर्टल चला रहा है, जो एक संस्थान है, वह YouTube पोर्टल चला रहा है जो दिव्यांगजनों के लिए जागरूकता पैदा करती है और पेशेवरों को भी मदद करती है, जैसे टीचर है या एजुकेटर है। वहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे
टेक्निक्स आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा, आप उसको अपने काम में ला सकते हैं। यूट्यूब चैनल में फाइन मोटर से रिलेटेड, स्पीच थेरेपी से रिलेटेड, वोकेशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड आदि बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर अलग अलग डिसेबिलिटीज के बारे में अलग अलग मैसेजेस हैं, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग डॉक्टर्स के साथ, विभिन्न दिव्यांगता के बारे में बातचीत है इनके यूट्यूब चैनल में, जिनके पास 16,400 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं इनके यूट्यूब चैनल पर। सो अतिशेक, what are the subject matters you are highlighting in your YouTube channel? मैंने तो बहुत कम ही बोला है, आपके दिमाग में क्या क्या आया था, जो आपने कौन सा सब्जेक्ट मैटर आया था जो आपने उसको हाईलाइट करना चाहा, लोगों तक पहुंचाना चाहा, और कौन से टारगेट व्यूअर्स को आपने टारगेट किया अपने YouTube चैनल में, वो हमें बताएं। जो आपके विषय क्या रहे और कौन कौन से टारगेट व्यूअर्स रहे, किसको लक्षित किया, उनके बारे में बताएं। सो अतिशेक जी, आपका स्वागत है, एंड या प्लीज। थैंक्स अलॉट सर, बहुत अच्छा आपका ये प्लेटफॉर्म है मशवरा, जो कि इस कोरोना के टाइम पे बहुत हेल्प कर रहा है देखा जाए तो। और देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिजिटल मीडिया, यूट्यूब चैनल हो चाहे सोशल मीडिया है, ये एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप कहीं भी किसी जगह भी कनेक्ट हो सकते हो। मतलब इसकी कोई बाउंड्री नहीं, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। जब हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो हमारा जो मेन मोटो था, हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि एक हमारा प्रोफेशनल या हमारे एक पेरेंट्स जो कि फेस कर रहे हैं, किसी घर में कोई डिसेबल पर्सन है, कोई बच्चा है, और वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि एजुकेशन कैसे ले, कहाँ से ले, किससे ले, और एक्चुअल एजुकेशन जो स्पेशल एजुकेशन है या उनकी जो राइट्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन उन्हें कहीं नहीं मिल पा रहा। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं, गूगल एक वर्ल्ड टॉप सर्च इंजन है, नंबर 1 सर्च इंजन है। अगर हम उसके बाद अगर किसी का नाम लेते हैं तो यूट्यूब है, जो कि सेकंड टॉप सर्च इंजन है, जिसपे कि हर कोई आता है। इवन आज की डेट में अगर देखा जाए तो विजुअल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। हम लोग सभी ऑनलाइन कनेक्ट होकर के ही पढ़ सकते हैं, फिजिकली हम लोग कोई मिल नहीं पा रहे हैं, कोई भी किसी से कनेक्ट फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा। बट यूट्यूब चैनल के थ्रू चीज़ों को सीखना समझना आसान है, और कहीं भी किसी भी स्टेट में, क्योंकि डिसेबिलिटी की एक सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो ये भी है कि ईजिली प्रोफेशनल्स अवेलेबल नहीं है हर स्टेट्स के अंदर, और स्कूल्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन यूट्यूब चैनल एक ऐसा है जो हर स्टेट में अवेलेबल है, हर कंट्री में अवेलेबल है, और हर प्रोफेशनल और हर पेरेंट्स के अवेलेबल है। तो इस चीज़ को देखते हुए, समझते हुए, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक यूट्यूब चैनल लाएंगे जिसपे हम अपने डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है और एजुकेशन से रिलेटेड उनकी थेरेपी से रिलेटेड हम लोग एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिज़ाइन किया है प्रॉपर वीडियो के थ्रू, ताकि पेरेंट्स सीख सके, प्रोफेशनल सीख सके, समझ सके, और उस चीज़ को, उस एक्टिविटीज़ को फॉलो कर सके। देखिए हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे के लिए हमें डिफरेंट तरीके से प्लान करना पड़ता है। तो हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पे कोशिश किया है कि किसी भी टॉपिक पे, जैसे हम उठा रहे हैं फॉर एग्जांपल कि हम अगर बात करते हैं थेरेपीज की, अगर हम बात करते हैं तो थेरेपीज में ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, स्पेशल एजुकेशन की हम बात करते हैं तो प्री रीडिंग है, प्री राइटिंग है। और हम अगर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग की बात करते हैं, डे टू डे लाइफ की जो चैलेंजेस है, अगर एक बच्चा है तो मॉर्निंग उठने से लेकर के इवनिंग सोने तक उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसको वो फेस करता है, उसे वो सॉल्व नहीं कर पाता है। तो हमने अपने इस चैनल पे थेरेपीज में जो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में फाइन मोटर के ऊपर, ग्रॉस मोटर के ऊपर एंड सेंसरी इंटीग्रेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हमने डेवलप किए हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हमने डेवलप की है, डिज़ाइन की है, और प्रॉपर वीडियो में डिस्क्राइब बच्चे के साथ इंडिविजुअल लेवल पे हमने करते हुए दिखाया है, ताकि पेरेंट्स उस चीज़ को देखें, समझे, इवन प्रोफेशनल्स उसको देखें, प्रॉपरली समझे और अपने बच्चे के साथ फॉलो करें। थेरेपी, चाहे आप स्पीच थेरेपी की बात कर लो, चाहे आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात कर लो, इन सभी चीज़ों में प्रैक्टिकली देखना, उस चीज़ को और समझ के अपने बच्चे के साथ फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गूगल पे जाते हैं, बहुत सारे थीसिस हमें मिल जाएंगे, बहुत सारे रिसर्च मिल जाएंगे, लेकिन हर किसी के लिए रीड करके, स्टडी करके उसे समझना मुश्किल है, लेकिन विजुअली उसको देखना, वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। उसी तरीके से हमने एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के जो चैलेंजेस होते हैं, बच्चों के डे टू डे लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं, हमने उस पर बहुत सारे, जैसे कि हमारे बच्चे का सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि मॉर्निंग में उठ रहा है तो उसे ये नहीं पता कि कैसे मुझे वॉशरूम में जाना है, किस तरीके से ब्रशिंग करनी है, किस तरीके से मैं नहाऊंगा, कैसे मैं तैयार होऊंगा, कैसे मैं कपड़े को पहनूंगा, मैं बटनिंग कैसे करूंगा, अनबटनिंग कैसे करूंगा।
किस तरीके से मैं अपना प्लेट रेडी करूंगा खाने के लिए और उसे कैसे खाना है। इवन खाना भी उन बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए कई बार चैलेंजेस होता है, उन्हें प्रॉपर पता ही नहीं कि कैसे बाइट तोड़ना है, कैसे स्पून होल्ड करना है। तो हम लोग ने अपने इस यूट्यूब चैनल पे बच्चों के लिए हर एक एक्टिविटी प्लान करी, उनके लिए वीडियो डिजाइन किया, कंटेंट रेडी किया, एक्टिविटीज में एक टॉपिक को समझाने के लिए 10 तरीके की हमने एक्टिविटीज प्लान की, ताकि बच्चा इजीली कनेक्ट हो सके, सीख सके, समझ सके। जितने भी पेरेंट्स हैं वो एक्टिविटीज अपने बच्चे के साथ अपने घर में फॉलो कर सके। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है इस फील्ड में, क्योंकि ये जो थेरेपीज होते हैं और ये जो ट्रेनिंग होते हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मैं रेशियो देखूं तो 15% वर्ल्ड पॉपुलेशन डिसेबल है किसी ना किसी तरीके का, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो मेंटली डिसेबल्ड है। उसमें से अगर हम जो सेंसस देखते हैं, गूगल पे जाकर के सर्च करते हैं, तो आपको दिखेगा कि 11 to 12% पीपल ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं है कि वो कंटिन्यूसली इस तरीके की थेरेपी को, क्योंकि ये थेरेपी और ये एजुकेशन जो है वो 1 डे के लिए नहीं है, 1 मंथ के लिए नहीं है, ये सालों साल चलने वाली चीज़ है। तो अगर यूट्यूब पे इस तरीके की वीडियोस हम डेवलप कर रहे हैं तो पेरेंट्स को ये हेल्प मिल रहा है कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल जो उनका पैसा थेरेपीज लेने में या फिर किसी प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट होने में लग जा रहा है, टाइम लग जा रहा है, वो सॉल्व हो रहा है। प्लस हम लोग कई ऐसे डिसेबिलिटी के एक्सपर्ट हैं जिनका हम लोग इंटरव्यूज लेते हैं। उस इंटरव्यूज का हमारा मेन फोकस, मेन मकसद ये रहता है कि पेरेंट्स को एज सुन एज पॉसिबल ये पता चल जाए कि हमारे बच्चे में क्या चैलेंजेस हैं और उसके लिए हमें क्या क्या प्रोग्राम को फॉलो करना चाहिए, किस डॉक्टर से कनेक्ट होना चाहिए, क्या थेरेपीज हमें लेनी चाहिए। तो हमने अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इस फील्ड में काफ़ी फेमस हैं, उन लोगों का हमने इंटरव्यूज लिया है। कोई भी हमारे चैनल पे आएगा तो उनको ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे ताकि वो अपने बच्चे के लिए एज सुन एज पॉसिबल अर्ली एज में आगे की प्लानिंग कर सके। तो सर, हम लोग इसी तरीके से यूट्यूब चैनल को चला रहे हैं, और भी बहुत कुछ है जो इस चैनल पे हम लोग कर रहे हैं और हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं। मैं आपको आगे भी वो चीज़ें शेयर करूंगा। बाकी बहुत ही अच्छा। एक बात जो आपने कही अतिशय, ये बहुत ही अच्छा कहा कि अगर हम YouTube के माध्यम से अगर बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बहुत सारे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो भी फ्री में, बिना पैसा पे किए हुए। और जो एक उससे भी उम्दा बात आपने कही कि जो थेरेपी का कॉस्ट है या फिर ट्रेनिंग का कॉस्ट है, एक माँ बाप अगर उसको कम करना चाहे तो आप YouTube से सीखकर जो भी YouTube इन्होंने बनाया है वो भी प्रोफेशनली इनके टीचर्स, इनके एजुकेटर्स, इनके डॉक्टर्स ने मिलके बनाया है, तो वो वहां पर आपको एक प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वेरी गुड। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आपके पास जो भी सवाल है, जो भी मैंने देखा है कि 1-2 सवाल आए हैं, मैं आई टेक योर क्वेश्चंस। आप प्लीज आप अपने सवाल को हमारे मैसेज बॉक्स में जरूर लिखिए। मनोविकास इज वर्चुअली ओपन with Manovikas e-Gyansala and other telecounseling like Manbhavan, like Mashwara and other program. Please visit our website manovikas.family, and also you can call us 9911107772. You can also go to the Mashwara's YouTube channel, Manovikas YouTube channel. There also you'll find so many information. मनोविकास वस्तुतः कोविड-19 के दौरान मनोविकास ई-ज्ञानशाला, टेलीकाउंसलिंग और मन भावन जैसे अन्य कार्यक्रमों के साथ वर्चुअली ओपन है। हम आप सबके साथ हैं। अगर आपको लगता है कि कोई सेवा चाहिए तो manovikas.family में जुड़ सकते हैं, वहां से उस माध्यम से आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले हमारे बीच हमारे एक बहुत अच्छे अखिलेंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने हाथ भी उठा रखा है। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? अखिलेंद्र कुमार जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर। जी नमस्कार। और अब मैं बता दूं कि आप एक्स कमिश्नर डिसेबिलिटी हैं यूपी गवर्नमेंट में। काफी अच्छे डिसेबिलिटी सेक्टर में काफी अच्छा इनकी पहुंच है। आप बताइए सर, कुछ कहना चाहते हैं आप क्या? नहीं, मैं धन्यवाद आपको देना चाहता हूं कि आपने इस मशवरा के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोगों को जोड़ दिया है जो अभी तक वंचित थे जानकारियों से। दूसरे आज के एपिसोड में मैं इसलिए और ज्वाइन किया कि हमारे भाई अशोक कुमार द्विवेदी जी का आज के एपिसोड में स्पेशल कार्यक्रम था, तो मैंने कहा ये अशोक जी के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि हमारे सभी के लिए रोल मॉडल तो हैं ही हैं
और इनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो एडवोकेट के अलावा वो आपने देखा होगा संगीत, वादन, गायन उनका सब बहुत अच्छा चलता है। इसके अलावा वो फैजाबाद से लखनऊ मुझसे मिलने आते थे अपनी बोलेरो जीप चलाकर स्वयं, और मारुति भी बहुत अच्छी चलाते हैं वो। तो उनकी जो मल्टीटास्किंग है, जो उनके जो अंदर तमाम सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं जिनको वो स्वयं तो नहीं बताते, पर हम लोगों ने चूंकि बहुत ही नजदीक से देखा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं 2 शब्द बोल के आपको इन सब चीजों से अवगत करा दूं और सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इनकी विद्वता से जानकारी कर सकें। बस इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। आलोक जी, जी आलोक जी, जी सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि हम YouTube के बारे में बात कर रहे हैं। जो रेडीमेड मटेरियल हमारे पास में स्क्रीन पर आता है, वी सी इट, लर्न फ्रॉम इट एंड एंजॉय, मगर इसके पीछे जो मेहनत होती है, जो काम होता है, सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी, कि हमको किस एक्टिविटी के ऊपर काम करना है। देन राइटिंग द स्क्रिप्ट राइट करनी पड़ती है कि कौन कौन से पॉइंट्स उसके अंदर हम कवर करेंगे। देन वी हैव टू चूज द मटेरियल चूज करने के बाद में वो टेक एंड रीटेक। हमने एक शॉट लिया, देखा अच्छा नहीं आया, उसको डिलीट किया, फिर दोबारा शॉट किया। तो मैं हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम कि जो ये इतना इजी मटेरियल पेरेंट्स के लिए, यूजर्स के लिए सामने भेज देते हैं। और हम सिर्फ बात कर रहे थे कि ये जो YouTube का जो चैनल, YouTube पर जो मटेरियल दे रहे हैं, इट इज यूजफुल फॉर पर्सन्स एंड पेरेंट्स with disabilities. No, I don't agree with that. It is useful for everybody. जो नॉन डिसेबल बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनके यहाँ भी बच्चों के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो इन YouTube चैनल्स को देख करके बहुत फायदा उठा सकते हैं। तीसरी बात, हम अपने पिछले एपिसोडों में बात करते रहे सेंसिटाइजेशन की, जागरूकता की, अवेयरनेस की। तो ये YouTube चैनल्स जो है, जो ये दोनों को नमन करता हूँ कि इनके जो YouTube प्रोग्राम्स हैं, ये लोग बाग ये नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनल्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज देखते हैं, एवरीबॉडी सीज दिस। तो सेंसिटाइजेशन बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है। हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। थैंक यू सर, थैंक यू। And I would like to allow our participant, if anyone has any question, you can unmute your mic and ask to our expert, ask to our speaker. अगर आपके पास कोई सवाल, कोई चीज जानना हो तो आप प्लीज अगर कोई आप अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। हेलो जी सर, जी मैम बोलिए। सर अक्लेम सर से बात करनी थी मुझे। हाँ करिए वो है यहाँ पर। अच्छा सर, नमस्ते। हम एकता ही बोल रहे थे सर, पुराने किले से। सर हम उनको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि आज हम इस फील्ड में हैं तो वो सर की ही वजह से हैं। सर मुझे जानते हैं वैसे। मैं ओह ग्रेट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अखिलेंद्र जी, आप आए, देखिए आप हमारे एक व्यूअर को भी बढ़ाया और उसको इंस्पायर किए, सो थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना हो, कोई यूट्यूब से रिलेटेड, या मैं आगे क्वेश्चन लूं? या किसी को कुछ बोलना हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं और यू कैन स्पीक। एक्सक्यूज मी सर। या बोलिए। सर मुझे पता करना था यूट्यूब चैनल कौन से नाम से है? अच्छा ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट उसमें ही जा रहे थे कि कौन से नाम से है और कैसे कैसे। थेरेपी अगर मुझे करवानी है बच्चे की तो वो कैसे हम देखेंगे, कैसे पता चलेगा बच्चे की अगर स्पीच नहीं है? स्पीच थेरेपी करवानी है तो कैसे आप YouTube के माध्यम से करवा सकते हैं? हाँ जी, ये आप जानना चाहते हैं जी। अतिक जी आप बताएंगे थोड़ा इसके बारे में कि अगर इनको YouTube से रिलेटेड कुछ, स्पीच थेरेपी से रिलेटेड कुछ करना हो तो? सर देखिए मैम, आपका जो क्वेश्चन है स्पीच थेरेपी हम कैसे करवाएंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे को ये देखना है कि हमारा जो बच्चा है उसकी एज कितनी है और उसकी स्पीच में कितनी प्रॉब्लम्स है। उसके बेस पे देखिए एज 13 प्लस है, 14 पे आ रहा है उस समय, और डाउन सिंड्रोम बच्चा है लेकिन स्पीच नहीं है उसकी। आप स्पीच थेरेपी पहले से ले रहे होंगे काफी?
नहीं सर, सेंटेगनिस में स्पीच का तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बस ले रहे थे सर थोड़ा सा। देखिए मैम, जो हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू हम लोग शेयर कर सकते हैं, मतलब हम लोग बेसिकली एक ऐसी इंफॉर्मेशन को यूट्यूब चैनल के थ्रू शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो जितने बच्चे मिलेंगे हर बच्चा डिफरेंट है, और हमें हर बच्चे के लिए डिफरेंट तरीके से प्लान करना पड़ता है। हम जितने भी बच्चों की स्पीच थेरेपी देखेंगे, चाहे वो सेम डिसेबिलिटी हो, हर बच्चे की कंडीशन के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। लेकिन कुछ कॉमन ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जिसको आप हर बच्चे के साथ अप्लाई कर सकते हो, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। उन एक्सरसाइजेस को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली अगर आपके बच्चे के स्पीच के चांसेस हैं डेवलप होने के, तो उसका फर्क आपको दिखेगा। लेकिन वो थेरेपीज, वो जो आप एक्सरसाइज हम लोग के वीडियो में हम लोग शेयर कर रहे हैं, आपको उसको कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपको उस एक्सरसाइज से फर्क पड़ रहा है और आगे का स्टेप आपको जानना है, तो हमारे आगे की वीडियोस भी उसमें लाइव हैं, जिसमें कि नेक्स्ट स्टेप में आप वीडियोस देख सकते हो कि नेक्स्ट एक्टिविटी क्या अवेलेबल है, कर सकते हैं। इवन आप हमारे चैनल के थ्रू कांटेक्ट भी हो सकते हो। आप हमारा वीडियो जो वॉच करोगे, उस वीडियो में अगर आप एक्टिविटीज देख करके फॉलो कर रहे हो और आपको लग रहा है कि इंप्रूवमेंट है, तो आप वहाँ पे कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हो। हमारा नंबर भी वहाँ पे गिवन है, आप हमसे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपने बच्चे के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करेंगे, फिर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं आपके बच्चे के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज प्लान करेंगे। आपके बच्चे के अकॉर्डिंग जो भी स्पीच थेरेपी के लिए प्लानिंग हो सकती है, वो बना करके वीडियो के थ्रू हम लोग फिर से शेयर करेंगे, ताकि आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और सर भी यूट्यूब में आपका मतलब ये जो स्पीच का आता है वो किस नाम से आएगा, वो मुझे जरूर दे दीजिएगा सर। मैम, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली हेल्प फॉर स्पेशल यूट्यूब चैनल सर्च करना है यूट्यूब पे जाकर के। जैसे ही आप चैनल सर्च करेंगे तो वहां पे हमने कैटेगरीज बनाई हुई है, स्पीच थेरेपी के लिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। तो आप उन कैटेगरीज वाइज प्रॉपरली सीरीज है इंफॉर्मेशन की, आप उसको चेक कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। जितनी वीडियोज हैं उन सभी में बहुत सारी एक्टिविटीज है आपके करने के लिए। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। मैं बताना चाहूंगा हमारे जो व्यूवर्स हैं कि YouTube क्या टीचर बना सकते हैं, क्या कोई बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टीचर है और एक प्रोफेशनल एडवोकेट है, उन्होंने YouTube बनाया। कोई भी YouTube बना सकता है, किसी भी तरीके से वो चला सकता है। सिर्फ आपके पास आपका अपना ईमेल आईडी होना चाहिए और आप अपने ईमेल आईडी से YouTube अकाउंट खोल सकते हैं और उससे आप YouTube चैनल चला सकते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, प्रतिबंध ये है कि आपको किस तरह के YouTube चैनल चलाने हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शंस है YouTube के, कुछ कानून होते हैं, कुछ उसके गाइडलाइंस होते हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो उसके हिसाब से आप अपना YouTube चैनल बना सकते हैं। नाउ आई विल गो टू अशोक सर। अशोक दुबे जी, प्लीज टेल अस सम स्पेशल स्टोरी। मैं जब भी मिलता हूँ बिना आपसे स्टोरी सुने हुए तो मेरी कुछ वो होती नहीं है, तो मैं तो कुछ एक स्टोरी सुनना चाहूंगा कि विच यू हैव चेंज्ड द लाइव्स ऑफ पर्सन्स इन लिविंग इन द रिमोट एरियाज। हमें कुछ ऐसे विशेष कहानी बताएं जिसके द्वारा आपने दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन को बदला है। मैंने 2-3 कहानी तो सुनी है और भी कुछ कहानी सुनाना चाहते हैं, प्लीज सर। वास्तव में पूरा जीवन ही, धन्यवाद। वास्तव में जीवन का एक एक पल अपने में कोई न कोई कहानी संजोए हुए है। सेंसिटाइजेशन पे लगातार काम किया, मुझे याद है, बड़ा आपको भी आनंद आएगा उससे। हम जब शुरू में जीप नहीं चला पाते थे, किसी शादी से वापस आ रहे थे, तो हमारे ड्राइवर को ये सूझा कि मैं ससुराल जाऊंगा अपनी। जिद किया, नहीं मैं जाऊंगा। मैंने कहा भाई रात में जगह हूँ, मुझे घर छोड़ दो, उसके बाद आप चले जाना, कोई बात नहीं है। नहीं माना वो। मेरी गाड़ी उसने जो खड़ी किया था वो पुलिस चौकी के सामने खड़ी किया था, बारून के। अब मुझे गाड़ी चलाना आता नहीं था, चूंकि पहले दिन था। उसको लगा कि ये गाड़ी चला नहीं पाएंगे, चाबी फेंक के चला गया हमारे गुस्से में वो। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मुझे भी गुस्सा आया, मैंने चाबी उठाई, लगाया, सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। जब तक आगे बढ़ा तो मैं देखा कि जो लोग आ रहे रोड पे, कोई दाहिने जा रहा है, कोई बाएं भाग रहा है, जो बिना हाथ वाला गाड़ी चला रहा है। कुछ दूर जब मैं चला तो सामने से एक दरोगा जी पीछे सिपाही को बिठाए बुलेट पे, डंडा लगाए चले आ रहे थे। तो मेरी तो हालत खराब हो गई, लाइसेंस था नहीं। मैंने कहा अब तो गया, आज मैं पिटा। मैंने गाड़ी किनारे लगाई, साइड में बैठा, और उसके बाद जब चले गए पीछे, रिव्यू में देखा, व्यू मिरर में, तो चले गए थे वो। फिर गाड़ी आगे बढ़ाई तो 2 मुस्लिम बहनें थी, उन्होंने मुझे हाथ दिया। ड्राइव में कर रहा तो उन्होंने मुझे देखा नहीं, मैंने गाड़ी रोक दिया पीछे। बोले, हम पूछा कहाँ जाना, बताया। मैंने कहा बैठ जाओ।
उनका जब डेस्टिनेशन आया तो उनका भैया रोक दीजिए। इस बीच उनसे और बातें होती नहीं, मैंने गाड़ी रोकी और जब वो उतरी तो बोली कितना पैसा हुआ। तो मैंने उनको ऐसे हाथ जाकर, नहीं नहीं कोई पैसा नहीं, आप जाओ। आप बिलीव नहीं करोगे, उनका अल्लाह अल्लाह करके पीछे गिर पड़ी। वो सीन मुझे बिल्कुल नहीं भूलता है। क्योंकि लाइफ चेंज करने की बात है तो मुझे याद है अपने चौरे बाजार अपने अयोध्या जनपद का है। हाँ, मतलब वो इंसान में भूल नहीं पाता, पीछे गिर पड़ी थी वो। क्या उसके बाद वो इतनी सेंसिटाइज हो गई कि उनको ये बिलीव हो गया कि नहीं डिसेबल भी कुछ कर सकते हैं। और अपने इलाके में उन्होंने जो भी दिव्यांगजन था, फिर उन्होंने एक तरह से सेवा करनी शुरू कर दिया। बड़ा फेमस नाम था उस इलाके का, लड्डन और मकसूद। कहने को तो क्रिमिनल थे, बट उनके बच्चों ने फिर लगातार काफी कुछ काम किया। एक बच्चा था, दोनों हाथ उसको नहीं थे। उसने मेरे बारे में कहीं सुन रखा था कि हाँ एक ऐसे हैं जो दोनों हाथों से लिखते हैं। वो बच्चा शायद इस समय 14-14 साल का हो गया होगा। मुझे अच्छा लगा जब एक अखबार में उसने इंटरव्यू दिया था और उससे पूछा गया कि आपने ये कैसे लिखना सीखा, हाउ डिड यू लर्न टू राइट। तो उसने कहा वो अशोक जी हैं, मैंने देखा था अखबार में और टीवी में उनको, आकाशवाणी में भी सुना था, तो उनसे मैंने प्रेरणा लेके मैंने कोशिश किया और मैं लिखने लगा। तो मुझे अच्छा लगा। और ख़ास बात तो ये कि अपने कुछ ऐसे बंधु थे जो डिप्रेस्ड थे, सुसाइड करने जा रहे थे। और जब हमने उनसे चर्चा किया और मेरी लाइफ के बारे में उन्होंने जाना कि हाँ कैसे स्ट्रगल किया है और कैसे लाइफ वो चला रहे हैं, दोनों हाथों के ना होने के बावजूद भी वो जी रहे हैं, तो उन्होंने सुसाइड का अपना प्लान त्याग दिया। मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, अच्छा नहीं है, उसका इम्प्रेशन निगेटिव जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो, परंतु ये सब मेरा काम नहीं था। ये सिर्फ माँ दुर्गा की कृपा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है, अयोध्या धाम की कृपा है। मेरा अपना इसमें कोई रोल नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा रामचरितमानस में सीधे लिखा हुआ है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विदिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। उसी को मैं फॉलो करता हूँ। और जितने भी हैं अपने समाज में बंधु, उनको ये मानते हुए कि सिया राम की मूर्ति हैं, भगवान राम इनमें है, ये मानते हुए अपना एक्शन करता हूँ। और यूट्यूब का उद्देश्य भी यही है कि जितने भी लोग हैं, हमने ठीक है अपने दिव्यांगजन को फोकस किया है, परंतु समाज के जितने भी वर्ग हैं उनको सेंसिटाइज करने का, चाहे वो जजेज हों, चाहे जस्टिस हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे गांव का आदमी हो, सबको मैंने कवर करने की कोशिश की है। और उससे रिलेटेड जो लाज हैं, जैसे अभी समस्याएं जब आती है दिव्यांगजन की, अभी मैटर कल आया था एक मेरे पास, मैंने उस पर वीडियो डाली बना के। तो कंटेंट खुद ही जनरेट करता हूँ, अपना कुछ कोशिश करता हूँ, कैटेगराइज करता हूँ और अपने एक्सपीरियंस से कैसे क्या कर सकता हूँ, उनके जीवन में कैसे बदलाव आ जाए, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहता है। क्योंकि हर जगह नहीं जा सकता मैं, तो इससे एक यूट्यूब से फायदा ये हुआ है कि जितने सब्सक्राइबर हैं, जो लोग इसको देखते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे इतने लोगों से एक मीटिंग हो रही है और हमारा काम लगातार चल रहा है, तो ये हमको अच्छा लगता है। बाकी जीवन की बात करें तो देखिए, हम आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं। वो आपको याद होगा जब भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, निमित्त मात्रम बहु सव्यसाचिन। तो सारा कुछ करिए कराइए भंजिए सोई, उमा मरम जानिए नहीं कोई। तो हम आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं। ईश्वर ने जैसा कहा करने के लिए वैसे ही करते रहते हैं, उन्हीं को सब कुछ समर्पित है। और चूंकि अपने दिव्यांगजन जो है ना, आप लोग तो भगवान तुल्य हो, उन दिव्यांगजन की सेवा कर रहे हो, आप लोग तो बहुत बड़े पुजारी हो, महंत हो महाराज आप लोग। हम लोग तो कुछ नहीं है। जो दिव्यांगजन है उनमें राम को देखना, उसमें अपने निराकार ब्रह्म को साकार रूप में देखना बहुत बड़ी बात है। उस भाव से काम करना और समाज को उसी दिशा में ले जाने का प्रयास यूट्यूब के माध्यम से और जागृति के माध्यम से आवश्यक है। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं समाज में, मेजॉरिटी उन्हीं की है। ठीक है, मुगल काल में और इधर कुछ गड़बड़ हुआ, लेकिन स्थिति सुधर रही है। हमें लगता है अगर हम अपने संस्कृति को देखने जाएं तो दिव्यांगजन का कहीं भी बुरा इतिहास नहीं रहा। दिव्यांगजन को हमेशा सम्मानजनक स्थान मिला है, अभी भी सम्मानजनक स्थान मिला है। भाई ये तो बात हमेशा रहेगी, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो यू शुड प्रूव योर डिजर्व, आप डिजर्व करो, आप योग्य बनो। कहीं से भी कहीं बाधा नहीं है। दिव्यांगजन को यह मन से बाधा निकाल देनी है कि हम दिव्यांग है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे भी हमने सक्सेस स्टोरीज 2-3, अब छत्तीसगढ़ की एक बहन जी विशाखा है, हमने यहाँ पे अपलोड किया उसकी वीडियो अपने यूट्यूब पे।
अशोक कुमार द्विवेदी नाम से चैनल है, आप जानते ही है। वो बच्ची बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बट हमने उससे बात किया है और उसने मेरे हर एक प्रश्न का उत्तर बोल के दिया है। यू कॉन्ट बिलीव, लिप रीडिंग जिसको आप कह सकते हैं, उसने उसका उपयोग किया है और अच्छा काम ऐसे लोगों को सक्सेस स्टोरी ग्रुप में दिया हमने। ऐसे अपने दिव्यांगजन बंधु हैं, कोविड काल में आप देखिए अपने सामान्य बंधु भी कह रहे हैं अरे बहुत परेशानी है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। हमारे एक लोकोमोटर डिसेबल है कुलदीप जी, हमने उनकी वीडियो भी शेयर किया है आपके सामने। वो भी कोविड-19 में उन्होंने मास्क बांटा और खुद 4-5 मशीन लगा के, बहुत बड़े परिवार के नहीं है, गरीब आदमी वो भी हैं, गांव से हैं, और लोगों को अटक गई इनकी आवाज लगता है। सेवित ही नहीं रहना है, सेवक बनना है दिव्यांगजन को, इस भाव से हमें आगे बढ़ना है। जी भाई साहब। जी, मुझे तो लग रहा है कि मैं आपकी बात जो सुनते सुनते मैं आप में खो जाता हूँ। जब भी मैं देखा कि हमें तो याद है कि आप पूरी रात हम लोग काट चुके थे, आपके कहानी इतने आपके पास है। इनके चैनल का नाम अशोक द्विवेदी है, आप उस चैनल पे आप देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अशोक जी टाइप नहीं कर सकते, मोबाइल पे टाइप करके आपको मैसेज बॉक्स में भी डाल सकते हैं। सो डोंट फील, अशोक जी अगर डाल देंगे तो अच्छा होगा। अशोक जी, आपसे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है अभिमन्यु का। अभिमन्यु, आप खुद बोलना चाहेंगे या मैं आपका क्वेश्चन? एक मिनट, अभिमन्यु मल्होत्रा। अभिमन्यु जी, यू वांट टू स्पीक? मैंने आपके माइक को अनम्यूट किया है अभिमन्यु जी। ओके, इनका क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। इनका क्वेश्चन है अशोक जी की जो ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो क्या उनको बिना आर्टिफिशियल लिम्स फिट कराए या फिर कुछ उसको कैसे मिलती है, या आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिली है या नहीं, उसके बारे में इनको इनकी जानकारी चाहिए। जी जी, बिल्कुल। देखिए, हमें याद है हमारा जो लाइसेंस बना था तो हमें जनरल लाइसेंस मिला था उस समय, एमवी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, और ये मेरा लाइसेंस था 1995 के पहले का। उसमें मैं ला कर रहा था और मेरे से गाड़ी चलवा के देखी गई थी हजरतगंज और अमीनाबाद, ये सब, तब मेरा लखनऊ से लाइसेंस बना था। पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जब हम एक तरफ ये कहते हैं, प्रियम्बल में आप देखेंगे लिखा हुआ है पर्सन विद डिसेबिलिटीज फ्री टू चॉइस। अब यहाँ पर जो परिवहन मंत्रालय है केंद्र सरकार का, उसने ही इस एक्ट की धज्जियां उड़ाई हैं। ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। मैंने इस पर माननीय गडकरी जी को लिखा भी है। जहां तक लाइसेंस बनने की बात है, अब तो सारथी पोर्टल इनका आ गया, उसमें 2 कैटेगरी किया इन्होंने, एक तो सामान्य के लिए, एक दिव्यांगजन के लिए। ये डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मेरे दोनों हाथ नहीं है, मैं सामान्य व्हीकल चला सकता हूं, चलाता भी हूं। हमारी तरह से बहुत सारे दिव्यांगजन साथी हैं जो सामान्य व्हीकल चलाते हैं और अपने रोजगार के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। तो आपने जो ये एक्ट में ला दिया बाद में कि नहीं, जो दिव्यांगजन है वो दिव्यांग या दिव्यांगजन के लिए बनी गाड़ी या मॉडिफाइड व्हीकल ही चलाएगा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, डिस्क्रिमिनेशन है, दिव्यांगजनों की स्किल को तोड़ने के समतुल्य है, उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अभी मैं वेट कर रहा हूं माननीय मंत्री जी के उत्तर का, अन्यथा मुझे हाईकोर्ट में पिटीशन लानी पड़ेगी और लाऊंगा भी, क्योंकि मेरे लिए हमारा दिव्यांगजन भगवान है, हमें उसके लिए सेवा करनी है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जहां तक बात है कि आर्टिफिशियल लिम्ब लगा के, तो मैं बताऊं, मैंने हाथ लगवाए, आर्टिफिशियल लिम्ब लगवाए मैंने, लेकिन जब मैंने देखा मोटरसाइकिल चलाऊं या कुछ करूं तो दिक्कत ये होती थी, वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता था उसमें, क्योंकि बेल्ट लगी है। सड़क पे आप देखते हैं उसमें 50 सेक्शन करने पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। और आज भी जो मैं चाहे मोटरसाइकिल चलाता हूं, चाहे साइकिल चलाता हूं, चाहे कार या जीप चलाता हूं, मैं इन्हीं हाथों से चलाता हूं और सामान्य व्हीकल चलाता हूं। क्योंकि बड़ी सीधी बात है, हम जब भी बात करते हैं दिव्यांगजन सामान्य है, इक्वल राइट की बात करते हैं, तो हमें भी इक्वल रहना पड़ेगा। हम ऐसा क्यों संसाधन अपनाएं कि हमें नहीं आर्टिफिशियल लिम्ब ही चाहिए? कोशिश करिए जो संसाधन है उन्हें में ही रहने का प्रयास करिए, उसी के मुताबिक ही रहिए। जब आप डिपेंड हो जाते हो आर्टिफिशियल लिम्ब पे, हाँ कुछ मामलों में हो सकता है आर्टिफिशियल लिम्ब की जरूरत पड़े, उसका उपयोग करना चाहिए, हम उसके विरोध में नहीं है, परंतु
प्रयास हमेशा ही रहना चाहिए कि जो हमारे पास नेचुरल संसाधन हैं हम उन्हीं का सामान्य व्यक्ति के रूप में, जनरल पब्लिक के रूप में इस्तेमाल करें, उसी तरह जिंदगी जिएं। क्योंकि हमारा सीधा सिद्धांत है, हम इस पर काम करते हैं, सेवित ही सेवक बन जाए। और सेवित सेवक तभी बन सकता है जब उसमें इस तरह से भाव आएंगे। सेवा लेना ही काम नहीं है, दिव्यांगजन को सेवा भी करनी है, इस योग्य बनना है, सक्षम बनना है। इसलिए मेरा जो कहना है कि सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाने से बचना चाहिए जहां भी डिस्क्रिमिनेशन करने की बात आए। और ये जो लाइसेंस के लिए बात आई है, ड्राइविंग लाइसेंस में गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी किया है। हाँ, जो बंधु ऐसे हैं वो मॉडिफाइड व्हीकल ही चला सकते हैं, उनको आप दीजिए डिसेबिलिटी का वो लाइसेंस, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो ये चाहते नहीं हम जनरल व्हीकल चलाएंगे, आप कैसे उनको कंपेल करो नहीं मॉडिफाइड ही चलाओ। वो जिस लाइफ को जीने के लिए हैबिचुअल हैं, आप कैसे ऐसे में बैठ के डिसाइड कर सकते हो। सो पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटीज को समझना पड़ेगा और इस पॉलिसी में आज नहीं तो कल चेंज करना पड़ेगा। हमारे दिव्यांग साथी भी लगे हुए हैं और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, होगा आज नहीं तो कल होगा, ये पॉलिसी चेंज होगी। जो जिस लायक डिजर्व करे अपने को, आप टेस्ट लो सबका, आप एप्लीकेशन मंगवाते हो, डिसेबल्ड की अलग मंगवाते हो, सामान्य की अलग मंगवाते हो, क्या दिक्कत है भाई उसमें? आप एक ही पोर्टल क्यों नहीं बनाते हो एप्लीकेशन के लिए? उसमें दिव्यांगजन चाहेगा सामान्य व्हीकल चला दिखाएगा तो उसको सामान्य लाइसेंस दीजिए, अगर आप संतुष्ट हैं उसके टेस्ट से, आप टेस्ट लेते हो ना, ठीक है। सही, अगर कोई दिव्यांगजन ऐसा है जो मॉडिफाइड व्हीकल के लिए है, आप उसको डिसेबल्ड का वो मॉडिफाइड व्हीकल लाइसेंस दीजिए। बट ये कहना कि नहीं आप डिसेबल हो इसलिए मॉडिफाइड व्हीकल ही चलाओगे, इट्स रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, रॉन्ग इन टोटो। दिस इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एज वेल एज द प्रोविजंस ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। तो आपने कोई ऐसा इस पे यूट्यूब बनाया कि नहीं? एक यूट्यूब बना के जरूर डालिए। जी हाँ, मैंने एक बनाया है और जो यूट्यूब बनाया था उसको अब फिर नए रूप में देने जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते वो, चूंकि आप जानते हैं कि अभी जो कंटेंट हम देने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है, उनको देते हुए इस पर भी मैं स्पेशल ला रहा हूँ। और इसको गडकरी जी को भी मैंने टैग किया है, अमित शाह जी को भी टैग करूंगा, उसमें सबको भेजूंगा मैं, इसलिए कि पॉलिसी मैटर है, ये पॉलिसी चेंज होनी ही चाहिए। हाउ कैन यू डिस्क्रिमिनेट द पर्सन विद डिसेबिलिटी फ्रॉम द सोसाइटी एट लार्ज? ग्रेट ग्रेट। सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सुदीप्ता मिश्रा जी का एक फोन ये मैसेज है। सर, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। आई एम सुदीप्ता मिश्रा, पर्सन विद cerebral palsy. She is a special educator working in a special school, Bhubaneswar, and she has some concern about speech therapy. Ma'am, you please take the number 9911107772. मैं अपने टीम से बोलूंगा कि नंबर टाइप करें और सुदीप्ता जी आप हमारे स्पीच थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है अगर आपको कोई स्पीच थेरेपी से रिलेटेड कोई भी आपके पास कोई सवाल हो। और मैं अशोक जी के जितने भी बातें हमने सुनी है, बहुत सारे बातों की तो वीडियो मैंने देखी है कि इन्होंने ये सारी जो बात कर रहे हैं, जो कहानी ये बता रहे हैं, उनकी वीडियोस आप यू कैन फाइंड आउट एट हिज अशोक द्विवेदी यूट्यूब चैनल। आई विल गो टू अतिशेक। अतिशेक, व्हाट इज योर प्लान टू मेक योर चैनल मोर एजुकेटिव? आपके चैनल को अधिक शिक्षाप्रद बनाने के लिए आपने क्या क्या योजना बनाई है? कुछ आप अपनी योजना के बारे में बताओ कि हम आगे क्या करना चाहते हो उसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे कि हमारा जो आज का भी टॉपिक है वो है अवेयरनेस, और यूट्यूब चैनल भी हमने इसलिए बनाया है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। और अवेयरनेस कभी एक इंडिविजुअल पर्सन क्रिएट नहीं कर सकता, वो एक ग्रुप क्रिएट करता है। जितने लोग हम जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हम अवेयरनेस क्रिएट कर पाएंगे और एज सुन एज पॉसिबल जो डिसेबिलिटी फील्ड की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो उसी चीज़ को हमने अपने दिमाग में डाला। जब हम अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो हमारे पास जो चैलेंजेस आते हैं कि हम एक कॉर्नर में, एक कोने में किसी जगह पे बैठे हुए हैं, इस इंडिया में, दिल्ली में एक कॉर्नर में हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और उसको शेयर कर रहे हैं। तो हमारे पास जो टारगेट ऑडियंस है वो शायद एक लिमिटेड है। यूट्यूब चैनल पे ऑडियंस बहुत सारे हैं, लेकिन जिन बच्चों के साथ हम प्लान कर रहे हैं और जो लोग हमारे साथ मिलकर के एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनके थॉट प्रोसेस शायद एक लिमिटेड लेवल तक जा सकते हैं, या हमारे बच्चों की कंडीशंस जो है हम शायद एक सिर्फ 100 बच्चों को ही टारगेट कर पा रहे हैं। तो बच्चा, जैसे मैंने पहले बताया कि हर बच्चा डिफरेंट है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अवेयरनेस पे वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास जितनी ज़्यादा आइडिया होगा, जितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी, उतना ज़्यादा हम आगे इस चीज़ को और अच्छा कर सकेंगे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए
हम लोगों ने जो प्लान किया है अभी, जो हम आगे चल के इसको करने वाले हैं, कि क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम आइडियाज की नीड है इस फील्ड में। तो हम लोग जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे फील्ड में जो वर्क कर रहे हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स वर्क कर रहे हैं, और जो पेरेंट्स हैं जो बच्चों के साथ 24/7 लगे रहते हैं, तो हम लोग उनसे भी उनके आइडियाज, उनके वीडियो क्लिप्स को इनवाइट कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं, उनको भी मौका दे रहे हैं कि वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आना चाहे, मोस्ट वेलकम है। अगर उनके पास कुछ भी आइडियाज हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन में या थेरेपी में हम आगे हेल्प कर सकते हैं पेरेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, डिफरेंट तरीके से जो हमने अभी तक शेयर नहीं किया है, और उनके पास कुछ डिफरेंट है, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम है। कोई पेरेंट्स है उनके लिए मोस्ट वेलकम है, कोई प्रोफेशनल है उनके लिए मोस्ट वेलकम है, जिनके पास जिस तरीके भी आइडियाज हैं मोस्ट वेलकम है। उसके अलावा हम लोग जैसे कि अगर डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो डिसेबिलिटी की जितनी अर्ली एज में पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिलेगा उतना ज़्यादा उनके लिए आसानी हो सकती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिसेबिलिटी बहुत सारी है, लेकिन जो हम मेंटल डिसेबिलिटी जिसपे हम लोग हमारे स्पेशल एजुकेशन में डील किया जाता है, स्पेशल स्कूल्स में डील किया जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के साथ या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के साथ, डाउन सिंड्रोम के साथ, लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ, ADHD के साथ, हियरिंग इम्पेयर्ड के साथ, तो हम लोग इन डिसेबिलिटीज के लिए प्रॉपर सीरीज का प्लान कर रहे हैं कि एक इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल सीरीज निकाली जाए, जिसमें कि यूट्यूब के थ्रू पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स स्टडी कर सकते हैं और एक एक इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है पेरेंट्स के सामने, ठीक है, अर्ली एज में पेरेंट्स जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, जो फाइनेंशियली साउंड है वो अच्छे से ट्रीटमेंट को फॉलो कर लेते हैं, मेडिसिन से अगर कोई ट्रीटमेंट हो रही है तो मेडिसिन को ले लेते हैं, या थेरेपिस्ट ले रही तो थेरेपिस्ट ले लेते हैं। लेकिन उन सभी के माइंड में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठीक है, हम अर्ली एज में जो भी करना हम कर रहे हैं, या फिर एक एज तक हम करते रहेंगे, लेकिन आफ्टर 15 to 16 ईयर्स के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग के लेवल पे आ जाता है, तो वो कहीं एम्प्लॉय हो सकता है या नहीं हो सकता है, कहीं वो जॉब कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको अर्ली से प्लान करके चले, प्री वोकेशनल लेवल से प्लान करके चले, वोकेशनल ट्रेनिंग तक लेके जाएं और स्किल बच्चे का इम्प्रूव करें। तो हम लोगों ने ये भी इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि अपने चैनल के थ्रू हम बच्चे को जितना हो सके वोकेशनल ट्रेनिंग जो स्टेप 1 से स्टार्ट हो और एंड तक के लिए एक इसका ऐसा पर्टिकुलर स्किल डेवलप हो जाए, ताकि कल को आफ्टर 16 to 17 या 18 ईयर्स के बाद जब भी बच्चा कहीं किसी जगह प्लेस होना चाहे तो वो प्लेस हो सके, वो इस लाइक इस एलिजिबल इस कंडीशन में आ जाए कि उसको दिक्कत ना आए। तो हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग की भी सीरीज लेकर के आने वाले हैं। इवन अभी जो हमने अपना यूट्यूब चैनल चलाया था, हमारा जब हमने स्टार्ट किया था 2019 में स्टार्ट किया था, इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमने देखा कि कोरोना के काल में कोई किसी से मिल नहीं पा रहा है, और यूट्यूब चैनल हमारा जितने भी सब्सक्राइबर थे उससे जस्ट डबल ट्रिपल सब्सक्राइबर होने को जा रहे हैं। इवन हमारे जो व्यूअर्स थे अप्रॉक्सीमेटली पैंडेमिक कोरोना से पहले 1 लाख व्यूअर्स थे, आज के डेट में हमारे पास 4 लाख प्लस व्यूअर्स हैं। अगर मैं कंट्री की बात करूँ तो आज की डेट में, पहले हमारे इंडिया में कुछ लोग हमारे चैनल को देख रहे थे, लेकिन आज की जो सिचुएशन है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, UK, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में हमारे व्यूअर्स हैं जो कि हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। और हमने जो एक प्रॉब्लम देखी उसमें ये प्रॉब्लम हमने नोटिस किया कि जो भी व्यूअर्स हैं जिनके लैंग्वेज डिफरेंट है, तो हम लोगों ने प्लान किया कि अब हम अभी तक हमने जो वीडियोस बनाई थी, मैक्सिमम वीडियोस 99% वीडियोस का जो कंटेंट होता था, जो लैंग्वेज होता था, वो हिंदी में होता था। लेकिन अब हमने उस प्रॉब्लम को देखते हुए, इवन इंडिया में कई बार हमारे पास जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस पे कमेंट आता है, वो लोग आता है कि प्लीज इंग्लिश में बनाएं या फिर उनके तेलुगु लैंग्वेज में बनाएं या डिफरेंट लैंग्वेज में बनाएं। तो हम लोग लैंग्वेज के ऊपर भी काम करने वाले हैं कि हर लैंग्वेज में वीडियो के कंटेंट्स अवेलेबल हो, ताकि पेरेंट्स कोई भी किसी भी रिलीजन और किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहा हो, किसी भी कंट्री से बिलोंग कर रहा हो, उसके लिए इन चीज़ों को समझ पाना आसान हो जाए। इवन बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे हमारे जो कमेंट्स आते हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, वो वीडियो को देखते हैं और उनके रिक्वायरमेंट आते हैं कि सर इस स्टेज में क्या करें, इस एज में क्या करें, इस कंडीशन में क्या करें। तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में उनको रिप्लाई देते हैं। लेकिन अब हमने ये भी स्टार्ट किया है कि हम अपने अगर वीकली बेसिस पे हम लोग जो भी वीडियो शेयर करेंगे, जिस भी टॉपिक पे शेयर करेंगे, हम उनके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी सवाल उनके टॉपिक से रिलेटेड आ रहे हैं, हम उससे रिलेटेड एक पूरी वीडियो रेडी करेंगे, ताकि उनको उस वीडियो के थ्रू बहुत अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अभी हम टाइप करके उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती है, लेकिन अब हम कंसल्टेंसी वाली एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आएंगे। जो भी हमारी क्वायरीज पूरे वीक आए हैं, हम उसको वीक के एंड में उनको सर्व करेंगे, ताकि उनकी प्रॉब्लम प्रॉपर सॉल्व हो सके। तो ये सर हमारा प्लान है फ्यूचरिस्टिक लेवल पे, जो कि हम लेके चलेंगे। ग्रेट, मैं तो सुन ही रहा हूँ। तुम्हारे पास अभी हमारे इस चैट बॉक्स में देख रहा हूँ
कि कुछ वॉलंटियर्स तैयार हो गए हैं। अरविंदर कौर जी, शी वांट्स टू वर्क फॉर यू, सो देयर आर सो मेनी पर्सन्स, they want to work for your YouTube channel. You put your you put your email ID, you put your mobile number in chat box so that the people can connect you. Okay, so that is great. So there is some Balmeet Kaur. Alinder ji, you want to speak something? I can request you. आपने नहीं सर, मैं नमस्कार, धन्यवाद नमस्कार फॉर रिकॉग्निशन। मैं अशोक जी को नमस्कार बोलता हूँ। अशोक जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल था अशोक जी से और जो आपके दूसरे पैनलिस्ट हैं। सवाल क्या मेरी अपनी जानकारी के लिए है। मैं यूट्यूब के बारे में बहुत नहीं जानता हूँ। जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं, एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं, तो उस आर्टिकल को बहुत सारे लोग क्रॉस चेक करते हैं। मैं वीडियो ऑन नहीं करना चाह रहा हूँ, घर पे कोई बात नहीं। तो हमारे आर्टिकल को कम से कम एक एडिटर बोर्ड होता है जो उसको चेक करता है, फिर वो किसी जगह पे पब्लिश होता है। अगर हम कोई बुक लिखते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे लोगों से पहले उसका क्रिटिकल रिव्यू कराते हैं। तो ऐसी कुछ क्रॉस चेक करने का कोई जरूरी तो है नहीं कि कोई जो यूट्यूब में वीडियो डालेगा उसका कंटेंट रियली वैसा ही होगा जो एक नए आदमी को सही जानकारी देने के लिए हो। ऐसी एक गलती हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हमारे दोनों पैनलिस्ट हैं इनके यूट्यूब चैनल में कोई ऐसी गलती हुई है, लेकिन अभी मान लीजिए हम किसी को मानसिक मंदता बताना चाह रहे हैं, वी वांट टू टीच हिम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड समबडी इज स्टिल टीचिंग कि उसको विकलांग बोलते हैं, जबकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरपीडी एक्ट विकलांग शब्द हटा चुका है। तो अगर कोई यूट्यूब चैनल गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है या सही चीज नहीं बता रहा है जो रियली हमारे पेरेंट्स को, हमारे समाज को या प्रोफेशनल्स को बताना चाहिए, तो क्या कोई एक्शन लेने का या कुछ उसको करेक्ट करने का कोई सिस्टम इवॉल्व हुआ है इंडिया में, या यूट्यूबर ने कुछ ऐसा किया है? कैसे हम ट्रस्ट करें कि ये पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल में जो जानकारी दी जा रही है वो एथिकली करेक्ट है, प्रोफेशनली करेक्ट है, या उसको 4 लोगों ने एक सर्टिफिकेट दिया है कि ये जैसे सीबीएसई की गाइडलाइंस फॉलो कर रही है या हमारा आरपीडी एक्ट के हिसाब से करेक्ट है? मेरा एक छोटा सा जानकारी चाहिए जी। मैं आपको बताना चाहूंगा अलिंदर जी, यूट्यूब जो है दिस इज सोशल मीडिया एज लाइक फेसबुक एंड ट्विटर एंड अदर हैंडल्स। और जब सोशल मीडिया की बात करते हैं तो वहां पर लोग अपने मन की भावना को व्यक्त करते हैं। यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया जो हमारे सरकार के पास कानून है, वो कोई ऑफेंसिव वीडियोस, ऑफेंसिव बातें नहीं कर सकती है, कोई सरकार के अगेंस्ट नहीं कर सकती या कुछ इस तरह से नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई भी व्यूअर, कोई भी व्यक्ति अगर उसमें कोई ऐसा पाता है, स्टैंडर्डाइजेशन की कोई बात नहीं है कि कोई कानून हो, कोई गाइडलाइन हो जिससे कि हम स्टैंडर्डाइज करें। स्टैंडर्डाइजेशन की कोई बात नहीं है, ना ही यूट्यूब में, ना ही फेसबुक में, इवन कि ना ही जो हम लोग अभी जितने भी सेमिनार्स कर रहे हैं या वेबिनार्स कर रहे हैं या मशवरा कर रहे हैं, इसके भी कोई गाइडलाइन नहीं है कि कौन सा शब्द यूज करें या कौन सा शब्द यूज नहीं करें। लेकिन यहाँ पर एक सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात आती है कि हम कॉन्शियसली कितना उपयुक्त मटेरियल डाल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, वी मस्ट हैव फाइंड द गाइडलाइन ऑफ द कम्युनिटी। तो जब YouTube में हम मान लीजिए कि सपोज अतिशय की कम्युनिटी है, स्पेशल एजुकेटर की कम्युनिटी है या स्पेशल एजुकेशन की कम्युनिटी है, तो उसमें जो हम एक कम्युनिटी कोई रूल्स बना होगा अगर YouTube के पास, तो वो हमें फाइंड आउट करना होगा। हमारे ख्याल से ऐसा कुछ डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई कम्युनिटी का गाइडलाइन उस पे है नहीं। म्यूजिक से रिलेटेड है या फिर फिल्म से रिलेटेड है, उस तरह के बहुत सारे गाइडलाइंस YouTube के पास हैं, लेकिन डिसेबिलिटी रिलेटेड नहीं है। तो अगर कोई भी व्यक्ति YouTube को कोई सलाह दे सकता है तो देन दे कैन मेक इट, डेफिनेटली दे कैन मेक इट। अदरवाइज व्हाटएवर द थिंग यू वांट टू पब्लिश, whatever the message you want to give it to socially, that is very much accepted in YouTube. Okay, so धन्यवाद सर, धन्यवाद। Yeah, so or Atisik, you want to say something in that? सर मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा कि कभी भी यूट्यूब चैनल या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप कोई चीज शेयर कर रहे हो, कोई भी अपना थॉट शेयर कर रहे हो, अगर आपके थॉट प्रोसेस में या आपके कंटेंट में कमियां होंगी तो डेफिनेटली आपको कमेंट्स मिलेंगे, आपके व्यूज नहीं मिलेंगे।
और जब भी जो भी बंदा देखने आएगा, अगर वो प्रोफेशनल है या पेरेंट है या अभी बिल्कुल न्यूली फ्रेश बंदा है जिसको ये पता चला कि मेरे बच्चे में डिसेबिलिटी और वो उस फील्ड पे उस वीडियो पे जा रहा है, तो आपको इतने कमेंट्स मिल जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव कि आप एनालिसिस कर सकते हो कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही है या गलत है। तो ये एक जरिया जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। और सोशल मीडिया पे कभी भी किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन को कभी कोई सपोर्ट नहीं करता, इवन चैनल भी सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको बहुत अच्छा जरिया है, तरीका है पता करने का कि आप उसके कमेंट को देख लो, आपको पता चल जाएगा कि इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है या राइट। और कोई टिप्स देना चाहते हो टू इनकरेज द आवर ऑडियंस अतिशेक? देन विल गो टू अशोक जी। आज अशोक जी से मैं कुछ गुजारिश किया हूं तो मैं अशोक जी के पास लास्ट में जाना चाहता हूं। अतिशेक, आपके पास कोई टिप्स हो तो यू कैन शेयर विद अस इन ए शॉर्ट। या अगर मैं बोलूं सर कि जैसे कि हम लोग शुरू से स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए बात कर रहे हैं, इवन इस फील्ड में जो कमी है जिस चीज के लिए हम लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाया है, अगर आज भी अगर आप सर्च करते, जब मैंने 2019 में यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किया था, वहां पर मैंने कंटेंट बनाने गया तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी। मतलब कि यूट्यूब चैनल पे हमारे फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें पता ही नहीं। इवन अगर RPWD एक्ट के बारे में कोई जानना चाहे या इवन नेशनल ट्रस्ट के बारे में कोई जानना चाहे, RCI के बारे में कोई जानना चाहे या डिसेबिलिटी के बारे में कोई जानना चाहे, तो कंटेंट अवेलेबल नहीं है। और अगर कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो वो लैंग्वेज फ्रेंडली नहीं है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो मेरा सजेशन यही है और मैं यही टिप्स दूंगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सेकंड टॉप सर्च इंजन है वर्ल्ड का, और यहाँ पर डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितने लोग जुड़ सकते हैं, जितना चैनल बना सकते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। वो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, उनके खुद के स्किल्स के लिए इम्प्रूवमेंट आएंगे, और जितने लोग आपसे कनेक्ट होंगे बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। मतलब सर मैं आपको वेरी फ्रैंकली बताऊं तो मेरे चैनल के ऊपर अगर कंटेंट और मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने एफर्ट्स कर रहा हूँ, और जितने लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, और अगर मैं लाइक की बात करूँ तो 99.99% जो थम्स अप के साइन आते हैं और गिनती के साइंस होते हैं, इवन साइंस होते भी नहीं है थम्स डाउन के, तो ये बहुत अप्रिशिएबल है। इवन मैंने कभी नहीं सोचा था कि शायद मैं दिल्ली के किसी कॉर्नर में बैठ करके एक स्कूल रन करूंगा और मैं शायद दुनिया में कनेक्ट हो सकता हूँ। यूट्यूब चैनल ने मुझे दुनिया में कनेक्ट किया है। इवन पेरेंट्स कहीं भी किसी स्टेट से और आउट ऑफ कंट्री से मुझे कॉल करते हैं और ब्लेसिंग्स देने के लिए कॉल करते हैं, सर कि आपने हमें बहुत हेल्प किया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जिसके पास जो भी आइडिया है यूट्यूब चैनल पे आए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। आपको सिंपल अपना एक ईमेल आईडी चाहिए, आपके पास एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए, वीडियो शूट कीजिए, जो भी कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है, बुरा कंटेंट है, जो आपको समझ में आता है आप शेयर जरूर करें, जरूर बेनिफिशियल होगा और आपका अच्छा कंटेंट होगा, ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। और कहीं ना कहीं अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया और आपके अच्छे व्यूअर्स है तो शायद आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, ये बात आपने बहुत अच्छा टिप्स दिया कि अगर आपके व्यूअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब आपको हर व्यू पे आपको पैसे देते हैं, क्योंकि यूट्यूब आपके वीडियो पे एड चलाता है, उस एड का भी जो सप्लीमेंट पार्ट है दैट यू कैन गेट इट। सो ग्रेट। एंड यूट्यूब नॉट ओनली कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि यूट्यूब से बहुत सारे पैसे भी कमा रहे हैं। सो वेरी ग्रेट एंड वी कैन कैरी ऑन। एंड मैं सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, मैं आप सभी को कहने वाला हूं कि आगे जो मैं एक पिटारा खुलवा रहा हूं वो बहुत ही हैरान करने वाला है, आप बहुत ही उसको एंजॉय करेंगे। मैं अशोक जी के पास जाना चाहूंगा और अशोक जी आपका टेक अवे मैसेज, जो एक इंक्लूसिव सोसाइटी के बारे में, जो आप समावेशी समाज के बारे में जो एक कोई मैसेज देना चाहते हैं, वो आप गा के दे दें तो लोग तो कम से कम कार चलाते हुए आज नहीं देख रहे हैं तो हारमोनियम बजाते हुए जरूर आपको देख लेंगे। सो हमारे व्यूअर्स को एक बार आप अपनी कला जरूर दिखा दीजिए प्लीज सर। धन्यवाद धन्यवाद। बात हारमोनियम की है तो मैं नहीं बजाता, ये हनुमान जी बजाते हैं, मुझे पता भी नहीं। अगर आप मुझसे पूछो मैं हारमोनियम कैसे बजाता हूँ, गाड़ी कैसे चलाता हूँ, तो आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, मेरे पास शब्द नहीं होते हैं, मैं नहीं बता सकता कैसे चलाता हूँ। बट अलेन जी ने जो सवाल किया था उस पर जरूर मैं आना चाहूंगा, 1 मिनट का समय चाहूंगा उसके लिए। जी जी जी। ऑफ कोर्स अभी एक यूट्यूब आई थी यूपी के लिए, उसमें उसने ये बताया कि प्रति माह 1500 पेंशन हो गई है। मैंने किसी अधिकारी ने मेरे पास भेजा, उसको बोले ये कैसे कब हो गया, मैंने कहा ऐसा नहीं हुआ है, और उसके पहले मैंने डाला हुआ था इन्फॉर्मेशन, और फिर हमने उसको सजेस्ट किया कि अपनी उसको या तो मॉडिफाई करो आप या फिर इसको प्राइवेट में डाल दो आप,
सो दैट कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्रिएट ना हो। चूंकि आप प्राइवेट अथॉरिटी हो, आप पर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है, बट आईटी जरूर लागू होता है। आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप गुमराह कर रहे हो, सोसाइटी में एक आप लाइन एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। जहां तक बात है कोर्ट की, डेफिनेटली उस पर एक्शन भी हो सकता है अगर रॉन्ग कंटेंट है तो। इसीलिए कभी भी रॉन्ग कंटेंट देने से बचना चाहिए। ठीक है, आप सोचते हैं रॉन्ग है, आपका अगर एक्सप्रेशन है तो आप ये बोलिए इट्स माय ओन एक्सप्रेशन, अलग बात है, तब आपको फंडामेंटल राइट आएगा, राइट टू एक्सप्रेशन का। बट ऐसे अगर आप एक ऑथेंटिक वीडियो दे रहे हैं और ये स्कीम के बारे में बता रहे हैं, योजना के बारे में बता रहे हैं, अगर योजना के बारे में कुछ गलत बता रहे हैं या गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई आप ऐसा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस इज ऑफेंस, और आईपीसी के तहत भी यह अपराध है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत भी अपराध है, अगर हम इसको एलेबोरेटली देखेंगे तो एक वाइड रेंज में। खैर, चूंकि वो भी यूट्यूबर हैं इसलिए हमने उनको सिर्फ सजेशन ही दिया है और सजेशन ही दे सकता हूं। आपका आदेश हुआ है कि भाई? नहीं, मैं आदेश नहीं, मैं तो आपके दिल की बात सुनना चाहता हूँ बस। तो आपके सामने, चूंकि सावन चल रहा है, सावन बीत गया, आज और अभी भगवान कृष्ण की कल छठी भी रात में गई है, तो भगवान कृष्ण को मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में भी देखता हूँ और भगवान कृष्ण को एक के रूप में भी देखता हूँ। अस्थिरोग विशेषज्ञ भी थे वो। आप देखिए, कुब्जा को उन्होंने ऐसे हड्डी मारा और सीधी हो गई, वो सुंदर स्त्री बन गई। तो इंक्लूसिव की बात जब मैं करता हूँ तो उस पर एक थोड़ी 2 लाइन की कजरी है। कजरी आप जानते हैं, अपना पारंपरिक गीत है। जी, बहुत मजा आ रहा है, इसको रखना चाहूंगा। जरूर जरूर। अटक गया। कोई कॉल आ गई थी। अरे रामा बाधा सारी मिटा के समावेशी भारत बनाना है। जीव जगत सब एक दूजे के भेद तनिक ना तिन पूजे से, भेद तनिक ना तिन पूजे से, शिव को कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, भेद तनिक ना तिन पूजे से, शिव को गले लगाना है। अरे रामा बाधा सारी मिटा के समावेशी भारत बनाना है। अरे रामा वृषभ वरुण गज मूसक राजे, वृषभ वरुण गज गर्दभ शेर मीन तन साजे, शेष से बुद्धि पाना है। अरे रामा बाधा सारी मिटा के समावेशी भारत बनाना है। मैं समझता हूँ पूरा बहुत ही मजा आ गया। आप तो पूरा गीत सुनाना है क्या? कजरी जो है आपकी मर्जी। नहीं, जैसे हमारे टाइमिंग कितना हो? टाइमिंग तो हमारे पास, आप जब तक हैं तब तक टाइमिंग है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ और एक दूसरा चीज सुना दीजिए। दूसरा क्या? जैसे जो आपकी इच्छा हो। नहीं, कुछ आप बताएंगे तो उसके मुताबिक देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई देशभक्ति ही सुना दीजिए। अभी 15 अगस्त का कुछ चल रहा है,
अभी वो गया नहीं Actually वो है, सारे या तो- फिर आप अयोध्या से हैं तो राम जी को ही सुना दीजिए कम से कम आपके बात वाणी से जो है राम जी का दर्शन हो जाए। मैं एक सोहर सुना देता हूँ। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी वो गुड। एक्चुअली छठी थी भगवान कृष्ण की, जी जी, तो सोहर भी होना चाहिए कम से कम, हमारे जरूर, दिव्यांगजन भी जरूर। उसका आनंद लें। जी जी। रामा भादों की है नंधरिया गरज बदरिया, रामा देवकी के भय मनोहारी वै कृष्ण मुरारी हो। रामा देवकी के भय मनोहारी वै कृष्ण मुरारी हो। रामा टूट गे करहत कणिया खुल गे किवणिया हो। रामा सोई गे पहरुदार और सब रखवार, रामा रिमझिम बरस बदरा चमक बिजुरिया हो। रामा भादों की रैन अंधेरिया यो गरजय बदरिया हो। रामा देवकी के भय मनोहारी वै कृष्ण मुरारी हो। रामा रिमझिम रामा वासुदेव घबराने बचावै के ठाने बचावै के ठाने हो। रामा सुपवा में कान्हा बिठाए और नंद घर जाए और नंद घर जाए हो। रामा भादों की रैन अंधेरिया और गरजै बदरिया और गरजै बदरिया हो। रामा देवकी के भय मनोहारी वै कृष्ण मुरारी हो। कृष्णा वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाह, मैं तो मतलब में डाल ये रखे हैं गाना उसको। मुझे ऐसे सुने हुए भी बरसों हो गए थे, और वो पुरानी जो गांव की जो खुशबू थी वो आपने जो है कि भीनी भीनी खुशबू आप अपने गाने के माध्यम से जो एक एहसास दिलाया, बहुत ही काबिले तारीफ है सर। और मैं देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी बड़े अच्छे से अच्छे कमेंट कर रहे हैं और बहुत ही प्रेज कर रहे हैं, बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारे पास कोई शब्द नहीं है अशोक जी की आपके इतने कलाकारी और आपकी जो इतनी महानता है उसके लिए कुछ गुणगान कर पाऊं। मेरा कुछ नहीं है, सब हनुमान जी कृपा है, माँ दुर्गा कृपा है, मेरा अपना कुछ नहीं है, सब समाज का है जी। I would like to tell here, अगर किसी के पास कोई और भी अभी भी सवाल है तो you can drop in the message box or you can write us the email mashwara mashvara@manovikas.family or fill the feedback form and you can find out there is a message box, you can write the message there also about mashwara कि मशवरा आपको कैसा लगा, आप हमें मेल कर सकते हैं, फीडबैक फॉर्म में भर सकते हैं। I would like to tell you here about the core area of presentation for the good practice. मैं चाहता हूं कि जितने लोगों के पास कुछ भी good practice हो, जैसे आज अशोक जी के पास और अतिशेक के पास इतने अच्छे good practice थे through YouTube channel, through their skills, through their innovations, they are very much appreciated here. तो आप अगर कोई भी whatever things you have in the area of care, like you are doing like any type of care, family care, or we can say that special need care or community care, whatever the care or education from primary education to higher education में अगर आप कुछ कर रहे हैं, skill development में कुछ कर रहे हैं, if you are doing something on the advocacy, either it is on individual level or any community level, wherever you are doing, आप अगर राष्ट्र भर से कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं राष्ट्र में,
तो हम आपको मशवरा लाइव में लाने की कोशिश करेंगे। आप जरूर हमारे जो वेबसाइट पे mashwara.live पर एक फॉर्म है, एक लिंक है, उसको आप भरिए एंड देन यू कैन कम टू अस एंड प्रेजेंट योर थिंग्स। एंड मैं देखता हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन है दैट इज कमिंग ऑन Saturday 22nd August at 3 PM with a very new and innovative topic. Keep watching us. आप हमें ध्यान से देखते रहिए, आप ध्यान से प्लीज मशवरा में आते रहेंगे तो यू विल फाइंड द वेरी इनोवेटिव टॉपिक। एंड कुछ पुराने एक हमारे जो लास्ट टू लास्ट एपिसोड में जो हमारे एक्सपर्ट करके गई थी, कमिट करके गई थी कि मैं एक नई टॉपिक आपको बताऊंगी। सो शी इज कमिंग विद द थ्योरी ऑफ माइंड। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, बट how we use this theory of mind in our sector, in our education, for the especially for the children with autism, ADHD and other। तो आप जरूर 22 तारीख को हमसे जुड़िए। And we'll go to for the final remarks by our JC Gupta sir. Sir, please sir. Thank you sir. Sir, अतीश शेख जी से मेरा एक निवेदन रहेगा जी जी कि ये स्पीच थेरेपी पे, एजुकेशनल थेरेपी पे, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पे तो बहुत सारे वीडियोस उन्होंने डाले हुए हैं और मैंने कुछ वीडियोस देखे भी हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मगर हम लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि इन बच्चों को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में ले जाना, ट्रांजिशन जो है वो बहुत आवश्यक होता है। तो जब हम इनको एकेडमिक से प्री वोकेशनल में ले जा रहे हैं तो वहाँ हमारा ट्रांजिशन प्लान क्या है, उस ट्रांजिशन के ऊपर पेरेंट्स कैसे आजकल के ज़माने में कैसे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे करें, ट्रांजिशन के ऊपर हमारे को, ट्रांजिशन प्लान के ऊपर हमारे को ज़रूर कुछ ना कुछ वीडियोस हमारे को इन पर डालने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और एक जो सवाल किया था ना कि भाई इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कि वीडियोस में लोग बाग अपनी शादी का वीडियो YouTube पर अपलोड कर देते हैं, क्या ऑथेंटिसिटी है उसकी? घर में बर्थडे बनाया, उसको हमने YouTube पर अपलोड कर दिया, क्या ऑथेंटिसिटी है? मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाते खाते उसका वीडियो बनाया, उसको YouTube पे अपलोड कर दिया। तो ऑथेंटिसिटी, जो भी वीडियोस हम देखते हैं या जो भी हम पिक्चर हम देखते हैं थिएटर में जाकर के, तो वहां से उनकी अच्छाइयों को हमको ग्रहण करना चाहिए, क्या क्या अच्छी बातें उनको हमें पकड़ करके लेना चाहिए और जो खराब बातें हैं उनको छोड़ देना चाहिए, या जो प्रोड्यूसर है उसको लिख देना चाहिए कि भाई इसमें आप इसको ऐसा नहीं तो ऐसा करते, क्रिटिसाइज ना करें, अगर इसकी जगह आप ऐसी की जगह ऐसा करते तो बहुत अच्छा रहता। तो यही मैं कहना चाहूँगा और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ट्रांजिशन के ऊपर ज़रूर, क्योंकि ट्रांजिशन जो है अभी जितने भी यूट्यूब पर मैं देखता रहता हूँ उसमें ट्रांजिशन के ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा है, which is a very important area for persons with IDD, intellectual and development disabilities के लिए ट्रांजिशन प्लान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जैसे कोविड-19 जहाँ शुरू हुआ 24 मार्च से कंप्लीट लॉकडाउन हो गया, तो वो एक रेगुलर स्ट्रीम से ट्रांजिशन हुआ उनका घर में बैठने का। अभी घर से लॉकडाउन खुला, यूट्यूब आने शुरू हो गए, ट्रांजिशन शुरू हुआ, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी, ट्रांजिशन शुरू हुआ। तो ये जो है ना, इस ट्रांजिशन के ऊपर हमको जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। थैंक यू सर, आलोक जी, थैंक यू। थैंक यू। And it is my very much privilege to extend my heartfelt thanks to on this 34.05 episode of Mashwara. I, on behalf of Mashwara team and Manovikas family and entire fraternity of institution, first of all, I extend my most sincere thanks to the Almighty God. आज अशोक जी ने भी भगवान जी की बहुत सारी बातें कही है, भगवान जी के बहुत सारे गीत गाए, तो मेरे भगवान जी से प्रार्थना है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। And on behalf of my own behalf, I extend very heartily thanks to our speakers, Mr. अशोक दुबे जी। आपके बारे में मैं क्या बताऊं, कोई शब्द नहीं होता, आप निशब्द कर जाते हैं हर बार कि मैं आपको किस तरह से धन्यवाद दूं, बट जो भी आप करते हैं वो मेरे दिल के करीब होता है। और आज अगर हम मशवरा इस प्लेटफॉर्म पे आपने आज ये चीज किया है, तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं,
आप उन सब के लिए इंस्पिरेशन है। आप इंस्पिरेशन बने रहिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अतिशय, मैंने कहा था कि तुम बहुत ही स्वीट बॉय हो, बहुत अच्छा है। जैसे अभी ने आपको, आप देख रहे हो कि मशवरा में आने से आपके बहुत सारे और लोग फॉलोअर ही नहीं बने हैं, आपके सपोर्टर भी बने हैं। सो जेसी गुप्ता सर का जो एक आइडिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट ऑन ट्रांजिशन, यू कैन कंसल्ट मी डायरेक्टली, आई विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच कि तुमने इतना अच्छा काम किया है और आज इतने अच्छे टॉक दिए एंड ग्रेसिंग द मशवरा। सो थैंक यू वेरी मच, thank you all, and my very much sincere thanks to JC Gupta sir, and thank you very much for gracing and sharing your very valuable suggestions. So thank you very much, and thanks to all my board members, team members, Desai sir and all. This is my deepest sense of appreciation for all my fraternity, all my team member, and big thanks to Adya, Namo Narayan, Amjad and other. And that the Shalini I'm finding here, she is also doing the volunteering. So thank you very much volunteers, आप हमारे मशवरा में बहुत अलग तरीके से हेल्प करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And I also extend my thanks to all my staff members and their enormous cooperation in organizing the episodes of Mashwara. It's very highly appreciated. Thank you, Raki, for sign language interpretation. Thank you, Suraj, for working on Facebook Live. Thank you, Indra Madam, for controlling Zoom. Thank you, Nishtha, for writing all the script and contacting our experts, Susil, DJ, Sangeeta Madam, Ruby Madam. So everyone, thank you very much. हमारे पास पिछले बार गुप्ता जी ने सुझाया था कि नाम एक लिस्ट हो जाना चाहिए, तो I'll request Nishtha, you please provide a list so that we can tell all the names of staff, those who have worked for the Mashwara, but everyone has worked for the Mashwara. So thank you very much all, and Manovikas family member, जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे wonderful guests हैं, wonderful participants हैं, your active participation with such a great affiliation with Mashwara is very incredible. Thank you all. Thank you for your active participation. Thanks a lot those who are directly, indirectly involved in this program. So जय हिंद, जय भारत. So thank you, धन्यवाद. मैं आप सभी का सम्मान करता हूँ, इस मशवरा में आने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। विशेष वक्ता हमारे डॉक्टर मिस्टर अशोक दुबे जी, मिस्टर अतिशय कुमार का हार्दिक धन्यवाद। जेसी गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषज्ञ के रूप में आप आते हैं, हमारे मशवरा को चेयर करते हैं, सो वास्तव में आप बहुत ही सराहनीय काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चेयरमैन, एडवाइजरी कमेटी, जितने भी मेंबर्स अभी जुड़े हुए थे, सबका धन्यवाद। और मैं सभी स्टाफ का गहरा आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस मशवरा की कड़ी की सफलता को बहुत ही शानदार सफलता दिलाई है। अंत में सभी माननीय सम्माननीय अतिथि, प्रतिभागी, आप सभी के सक्रिय भागीदारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर मिलते हैं अगले सैटरडे को। थैंक यू वेरी मच।